Hello children, welcome to Little Scholars Public School. Children, today we are going to learn about the reflex action. Now I am showing you some pictures that you have to observe it. So these four situations, first when you take your hand towards the something hot objects, here we can take examples near the candle, burning candle. When you take your hand, then when you get the burn to your tip of the finger, you suddenly take back your hand. Yes, in a second situation here you can see when light falls on your eyes, then you suddenly what you do, you close your eyes. Third situation here you can see the some unwanted substances enter in your nose, then you suddenly what you do, sneeze it to remove the unwanted materials. And here in a fourth situation you can see that when something we can take any substance to and beat or give a small jerk or the gentle jerk on your knee, then what will happen, then your knee or your leg will come front. Yes, four situations children here you can see क्या क्या होता है. फर्स्ट सिचुएशन में जब आपका हाथ बाय मिस्टेकन अगर वो बर्निंग कैंडल पे गिरता है तो हम सडनली हाथ पीछे हटा लेते हैं. सेकेंड सिचुएशन आप देख सकते हो जब लाइट फॉल होती है आपके आइस पर, तो हम क्या करते हैं, या तो आई कॉन्टैक्ट प्यूपिल हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर क्लोज कर लेते हैं. थर्ड सिचुएशन जब हमारे नोज़ में कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल जब अंदर जाते हैं तो हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, एंड दिस वे वी रिमूव द और टेक आउट द फॉरेन पार्टिकल्स. एंड द फोर्थ सिचुएशन में जब हमारी नी पर हम डॉक्टर जब टेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है नी में या कुछ इंजरीज है, तो चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, मूवमेंट है या नहीं है नी की, वो देखने के लिए वो स्मॉल जर्क देते हैं या फिर रबर का हैमर रहता है उससे वो क्या करते हैं, टैप करते हैं नी पर. देन सडनली हम क्या करते हैं, उस लेग्स को फ्रंट लेके जाते हैं. तो ये सारे सडन जो चेंजेस है इसे हम क्या कहते हैं, देखिए उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. सो डेफिनेशन चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी दैट any sudden change and involuntary change is known as a reflex action. मतलब ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो रहे, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स देते हैं हम टूवर्ड द स्टिम्युलस. ओके, स्टिम्युलस मीन्स वॉट एवर वी फील थ्रू द आर सेंस ऑर्गन्स और थ्रू द सेंस from the outer environment, then we say it is a stimulus. Yes, previously I have explained about the stimulus. So any sudden and involuntary reaction toward the stimulus is known as a reflex action. Okay, so this definition children you can write down. So ये sudden reaction हम जब देते हैं, then what actually it happened, that process we are going to learn about that. All the four situation we can say. So all four situations when it happens, what reaction we give before going to that reaction toward the brain. So which part it comes in that I'm going to tell you. Okay, here we have to take one example. One more children, again I am going to explain you that. 1 minute, you have to write down the some things. What you will write, रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन आपको लिखना है. ओके, प्लस एग्जाम्पल्स वी हैव टू राइट डाउन चिल्ड्रन. तो यहाँ पर हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन जब हमारा हाथ यहाँ पे कुछ फायर हो रहा है, कुछ जल रहा है और उसको हमने बाय मिस्टेक टच किया, तो वो फिजिकल स्टिमुलस जो है वो कहाँ पास होगा, इट विल पास टुवर्ड्स योर हैंड. सेंस के थ्रू वो पास होगा फिजिकल स्टिमुलस और कन्वर्ट किस में होगा,
it will converts toward this message is passes toward the neuron. Okay, how it is going, see, through the sensory neuron this passes message, something is a burning और कुछ जल रहा है, आपका हाथ जल रहा है, that message passes through the sensory neuron. Here I am making loop, that I'll explain later why I am making this loop. वो सेंसरी न्यूरॉन पास कर रहा है कहाँ पर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये हमारा मैसेज पास हो रहा है, समथिंग इज अ बर्निंग और हाथ जल रहा है. सो दैट मैसेज पासिंग थ्रू द न्यूरॉन्स टुवर्ड द वेयर स्पाइनल नर्व्स, and that through the spinal nerves it goes toward the second neuron. Yes, all we have learnt about that. All neurons are connected with each other, not physically but they are connected. So it passes this message to the relay neuron. हम क्या कहाँ पर कहते हैं, सेकेंड न्यूरॉन, इट इज़ अ रिले न्यूरॉन और न्यूरोट्रांसमीटर हम कहेंगे. It is also going to the brain, but before going to the brain, what will happen? See here, this message is passing to the brain through the spinal cord. But before going to the brain, that action takes here only. So here we can see the first neuron passing this message to the another neuron. That is, we can say the relay neuron passes this message, and through that relay neuron this message is going to the motor neuron. This information carrying by the motor neuron to the affected organ, or here muscles, you can see that, to the affected organ or effector, through that muscle you can say, and then suddenly we take a jerk और हम हमारा हाथ क्या करते हैं, रिमूव करते हैं when it passes the information. Okay, so the rapid withdrawal of the hand when a finger is something burning, this is known as the reflex action. So what first you have to see क्या क्या processes हो रहे हैं when the reflex action takes place. Here I am showing you, children. Let me take brush. Now see, so this you can see, firstly it begins, reflex action कहाँ पे start होता है, firstly it begins with the receptor. यहाँ पे receptor means receive कौन कर रहा है, आपका hand. जब आपका hand जल रहा है because of this fire, so firstly it begins with the receptor detecting the stimulus. detect कर रहा है, stimulus क्या कर रहा है, ये stimulus outer stimulus detect कर रहा है, detecting the stimulus or a sudden change in the environment, and where the instinct again has a role to play. Okay, and the stimulus is received from a sensory neuron. कौन sensory neuron क्या कर रहा है, received कर रहा है, जो stimulus है that is received by the sensory organ. So these messages passes toward the sensory neuron. Here it is a sensory neuron is there and one loop is there, that what why I made this loop, again I am going to tell you. And this message here, it is, we can see that passes to the relay neuron, and then the sensory neuron sends a signal to the relay neuron. यहाँ पे आप देख रहे हो second neuron attach है वहाँ पर. This messages passes to the sensory neuron, send this signal to the relay neuron, and this is followed with the relay neuron sending the signal to the motor neuron. यहाँ पे another neuron क्या कर रहा है, motor neuron passing this message toward the affected organ or affected part or the effector area. जहाँ पे effect हुआ है वो वहाँ पे pass कर रहा है message, and further the motor neuron sends a signal to the effector, and the effector produces an instantaneous response. क्या करते हैं हम, फिर एकदम से response देते हैं जहाँ पे जल रहा है. ये जब मैसेज हम तक आता है थ्रू द मोटर न्यूरॉन, हम क्या करते हैं, हमारा हाथ सडनली साइड में हटा लेते हैं. बिफोर गोइंग टू द ब्रेन, दिस मैसेज यहाँ पे ब्रेन तक पहुँचती है, लेकिन ब्रेन तक जाकर फिर वो मैसेज ब्रेन से लेकर मोटर न्यूरॉन थ्रू
हमारे हाथ तक, हमारे इफेक्टेड ऑर्गन तक आने तक बहुत टाइम हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ये मैसेज यहाँ से ही ट्रांसफ़र होती है, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से ही रिले न्यूरॉन के थ्रू पास होती है, अनदर न्यूरॉन दैट पासेज दिस मैसेज थ्रू द मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टेड ऑर्गन की तरफ, और हम हमारा हाथ पीछे हटा लेते हैं। इसे ही कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, सो दिस एक्सप्लेनेशन हमें क्या बताता है, दिस एक्सप्लेनेशन इट कैन क्लियरली समराइज दैट द मोमेंट द एफरेंट न्यूरॉन्स मीन्स जहाँ से हम मैसेज दिस मैसेज स्टिमुलस से जो हमें मैसेज पास हो रहा है वहाँ से जा रहा है, उसे हम कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन। और जो मैसेज लेकर आ रहा है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड इसे कहते हैं हम इफरेंट न्यूरॉन। ओके, सो दिस एक्सप्लेनेशन इट कैन बी क्लियरली समराइज, क्या समराइज कर रहा है, दैट द मोमेंट द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव्स अ सिग्नल, जहाँ पे सिग्नल रिसीव कर रहा है, a signal from the sensory neuron, it transmits the impulse to the central nervous system, that is the spinal cord, and the efferent neuron then carries the signal from the central nervous system to the effector, and the stimulus thus forms a reflex arc. अभी reflex arc किसे कहेंगे, the path along which the reflex action travels, that is known as the reflex arc. So one more things I have to explain that why I made that loop. Okay, so here showing that sensory neuron, it is transmitting the message to the relay neuron, and relay neuron to the then motor neuron. Here it is a motor neuron. See children, सेंसरी न्यूरॉन किसे कहते हैं, जो थ्रू द सेंस, जो स्टिमुलस से मैसेज कैरी करके ले जा रहा है, उस न्यूरॉन को हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। और जो सेंसरी न्यूरॉन किसको पास कर रहा है ये मैसेज, इट इज़ गोइंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे, रिले न्यूरॉन को जो ट्रांसफ़र कर रहा है मैसेज, कहाँ से, सेंसरी टू रिले न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है, एंड थ्रू द relay neuron it passing toward the motor neuron, and motor neuron taking the action, sudden action. Yes, and this is the spinal cord. Okay, this path it is known as the reflex arc. So reflex action, the signal do not route to the brain, कहाँ पे नहीं जाएगा, do not go to the brain, instead it is directed into the synapse in the spinal cord, and hence the reaction is almost instantaneous, suddenly change हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो complete path आपको दिख रहा है रिफ्लेक्स एक्शन का, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। सी चिल्ड्रन, आई थिंक सो यू गॉट इट। सो इनवॉलंटरी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जब हम बुक पढ़ रहे हैं और बुक पढ़ने में हम कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हमें पीछे से आके कोई धक्का देगा, है ना, ज़ोर से धक्का देगा, तो हम क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये जो हम रिएक्शन दे रहे हैं, ये रिएक्शन क्या होगा, सडन होगा, इनवॉलंटरी होगा। हम जानबूझकर नहीं कर रहे, या फिर हमारे विश से नहीं कर रहे, या हमारे इच्छा अनुसार नहीं कर रहे ये रिएक्शन। हम रिएक्शन किसकी वजह से दे रहे हैं, इनवॉलंटरी और सडन, जो हमें पता नहीं था, हम पढ़ाई में मग्न हुए थे और किसने हमें जर्क दिया या फोर्सफुली धक्का दिया, तो हम जो रिएक्शन देते हैं उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, नाउ so a complete path children, you have to keep in a mind what changes, what I told, that you have to keep in the mind. So कहाँ से जा रहा है ये रिफ्लेक्स आर का भी डेफिनेशन। सी हियर वन मोर
आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन दैट दिस वन। तो ये जो है ये लूप क्यों बनाया गया है, ऑलमोस्ट हमने देखा है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बट सम न्यूरॉन्स आर मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, दैट्स व्हाई आई मेड लूप ओवर हियर। ओके, सो this sensory neuron looks like that, having the loop. So different types of neurons are there. ठीक है, so this, तो कहाँ से रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन चिल्ड्रन लिख लीजिए। path along which a nerve impulse travels during reflex action is known as the reflex arc. What you write? Path along which a nerve impulse travel during reflex action is known as reflex arc. तो ये कहाँ पर जा रहा है रिफ्लेक्स आर्क? रिसेप्टर, रिसेप्टर मीन्स जो रिसीव्स कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है ना, सेंसरी। 1 मिनट चिल्ड्रन, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट अगेन क्या क्या आपको याद रखना होगा? रिसेप्टर जो रिसीव कर रहा है, सेंस ऑर्गन, वहाँ से एनी ऑर्गन, रिसेप्टर में ऑर्गन हो सकता है, सेल हो सकता है, स्ट्रक्चर होता है। जो रिसीव कर रहा है स्टिमुलस, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? फायर, एंड देन इट कैरीज टू नर्व इम्पल्स, कैरिंग टू कहाँ पर? एफरेंट फाइबर, एफरेंट फाइबर जो कैरी कर रहा है मैसेज फ्रॉम द किससे? स्टिमुलस से, and then afferent fibers carrying to interneuron or the relay neuron, and then generate a motor neuron impulse here. Okay, तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में हमें क्या याद रखना पड़ेगा? डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, ये दो चीज़ें, एंड व्हाट आर द सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स डू। सो चिल्ड्रन, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, सडन चेंज होते हैं, इनवॉलंटरी चेंज जो होते हैं, वो कुछ जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो इनबॉर्न भी रहते हैं, है ना। जैसे टाइप का एक एग्जांपल लो, जब आप टाइपिंग सीखते हो और जब कंप्लीटली उसे सीख लेते हैं टाइपिंग करना, विदाउट सीइंग आल्सो यू कैन टाइप, है ना, बिना देखे भी आप फटाफट टाइप कर लेते हो। और अगर कुछ गलती भी होती है, सो विदाउट विद इन अ सेकेंड हम क्या करते हैं? बैक स्पेस में जाते हैं और वो मिस्टेक करेक्ट करते हैं। सो दैट वी कैन से इट इज़ द एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। क्या कहेंगे हम उसको? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। यहाँ पे एक साइंटिस्ट, यहाँ पे दिखा सकती हूँ मैं आपको, ये साइंटिस्ट पैवलोज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, एक डॉग को एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना दिया। सपोज एग्जांपल हम ले सकते हैं कि दोपहर के 12 बजे उनको खाना दिया। सो ये जब खाना वो देखता था डॉग, तो उसको सलाइवा आता था, है ना, सलाइवेशन होता था। एवरीबडी हैज़ दैट व्हाट वी कैन से, बाय बर्थ ही रहता है हमारे में। क्या होगा? when we see the food, salivation comes. ओके, सलाइवा आता है हमारे माउथ के अंदर। तो ये हम कह सकते हैं ये इनबॉर्न है। ओके, बट आफ्टर ही डन वन एक्सपेरिमेंट विद दैट डॉग, उसने क्या किया, खाना देने से पहले उसने बेल बजाना शुरू किया। जब जब बेल आती थी, बाद में खाना आता था, जब खाना आता था फिर उसमें सलाइवेशन शुरू हो जाता था। ओके, सो उसको हैबिट हो गई थी वो डॉग को कि जब भी बेल होगी तो उसको क्या होगा? खाना मिलेगा, और फिर वो सलाइवा माउथ में आता था। मतलब ये क्या हुआ? ये एक्वायर्ड है। किस टाइप का है? कंडीशनल रिफ्लेक्स कह सकते हैं, या फिर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। मतलब रिफ्लेक्स क्या होता है? इनबॉर्न भी होता है, या फिर हम उसे एक्वायर्ड भी कर सकते हैं। इनबॉर्न मतलब जब खाना देख के सलाइवा आना, ये इनबॉर्न हो गया। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर बेल बजने के बाद जब फूड आता है, उसे पता है कि ये बेल होने के बाद फूड आएगा, तब सलाइवा आना, मतलब इसे कहेंगे हम कंडीशनल रिफ्लेक्स या फिर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। मतलब हम एक्वायर भी कर सकते हैं रिफ्लेक्स। व्हाट वी कैन डू? वी कैन एक्वायर्ड आल्सो। सो दिस एक्सपेरिमेंट डन बाय द Pavlov's
scientist. Okay, next children. So conditional reflex, here you can see a reflex action acquired from past experiences. जो past experience हो चुके हैं उससे हम acquired कर सकते हैं और learning कर सकते हैं with the stimulus which is originally ineffective in the producing the response. Example, Pavlov's experiment. Okay, so here we can see the whole reflex action diagram, and here typical reflex. Children, here we can see the stimulus with the stimulus here, outer stimulus passing this message to the afferent fiber to the sensory neuron. Sensory neuron से ये पास हो रहा है कहाँ पे, रिले न्यूरॉन और द इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यहाँ पर हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड पे ये मैसेज पहुँच रहा है. एंड दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ पे जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन टू इंटरन्यूरॉन, and through the interneuron it is passing that message to the motor neuron, and then through the motor neuron it goes to the effector organ or the muscles where we are getting the pain or here. So typical reflex are क्या क्या होगा, sensory neuron, interneuron and the motor neurons. So children, I think so you have understood this. Any sudden or involuntary reaction जब होता है, किसी को हम रिस्पॉन्ड जब देते हैं आउटर स्टिमुलस को, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये तो एक इनबॉर्न भी रहता है या फिर समटाइम्स एक्वायर्ड भी हम कर सकते हैं, उसे कहते हैं एक्वायर्ड व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन. सो चिल्ड्रन, आई थिंक सो यू गॉट दिस पॉइंट.